ट्विटर इन दिनों दुनिया भर के अखबारों और खबरिया चैनलों की हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है। जब से टेस्ला के सीईओ ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है, तब से इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। अधिकारियों को निकाला जा रहा है और फर्जी खातों पर नकेल कसने की बातें की जा रही हैं। इन सब के बीच एक और दिलचस्प वाकया सामने आया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद एलन मस्क ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की और ट्वीट किया कि हमारा मकसद ट्विटर को सटीक जानकारी देने वाला मंच बनाने की है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा। चलिए करते हैं डिकोड व्हाइट हाउस के डिलीटेड ट्वीट को और समझते हैं कि ये पूरा माजरा असल में है क्या। शुरुआत करते हैं व्हाइट हाउस के उस ट्वीट से जिसने बाइडेन सरकार की फजीहत कर दी। आइए आपको दिखाते हैं व्हाइट हाउस के डिलीटेड ट्वीट को इस ग्राफिक्स की मदद से। क्या व्हाइट हाउस को डिलीट करना पड़ा ये ट्वीट और पेंशन लाभार्थी का मामला था बाइडेन सरकार की जो फजीहत बनता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व के लिए धन्यवाद, क्योंकि अमेरिकी पेंशन लाभार्थियों को 10 सालों में सबसे बड़ी लाभ वृद्धि मिली है। कि ट्वीट व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया था, लेकिन जैसे ही ये ट्वीट किया गया, इसके विरोध में कुछ यूजर्स ने आवाज उठानी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप ट्विटर ने एक नोट जारी किया कि पेंशन में ये बढ़ोतरी असल में बढ़ती महंगाई के चलते हुई एक ऑटोमेटिक प्रणाली का नतीजा है, जो कि अमेरिकी पेंशन लाभार्थियों के लिए 1972 से ही अस्तित्व में है। ट्विटर पर बर्ड वॉच प्रोग्राम के तहत कुछ उचित पोस्ट के लिए टिप्पणियां जोड़ी जाती हैं, जो यूजर्स के बड़े वर्ग की राय से जुड़ी मदद के उद्देश्य से शुरू की गई है। ट्विटर द्वारा अमेरिकी पेंशन धारकों पर की गई टिप्पणी के बाद व्हाइट हाउस ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। व्हाइट हाउस ने इस पर अपनी सफाई में कहा कि ट्वीट अधूरा था, इसीलिए डिलीट किया गया है। आइए सुनते हैं। The White House removed a tweet that talked about the increase in Social Security benefits in 2023, quote, through President Biden's leadership. There was a contextual note, I'm not sure what the proper terminology is for the platform, that was added to that. Was it removed because of the addition of the note, or was it removed because of the concern about the veracity of the message? So it was, look, the tweet was not complete. Usually when we put out a tweet, we posted with context, and it did not have that context. So in the past, we've pointed out that for the first time in over a decade, seniors' Medicare premiums will decrease even as their Social Security checks increase. That's a little bit of context that was not included. This means that seniors will have a chance to get ahead of inflation due to the rare combination of rising benefits and falling premiums. And let's not forget, as you've been hearing me say for the past few minutes about MAGA Republicans in Congress and their continued threat to threaten Social Security and Medicare, proposing to them on the proposing to put them on the chopping blocks every 5 years, threatening benefits and to change eligibility. So those are the types of context that would normally be with a tweet like that. It did not have that context. It was an incomplete tweet, as I just mentioned, and so that's why you saw the digital team take that action. And I think part of the reason I asked is because the president mentioned a similar type of thing in both of his events yesterday, saying on my watch in one case, on our watch in the other case. Now, he included the Medicare piece of this that you're talking about in the back end. You believe that as long as the Medicare piece is included, that's not claiming credit for something that is quite literally tied to the cost of living. We believe that if inflation. we want to lay our argument out fully, and that was important to do as we put out information like that, or as we put out a tweet, and that was an incomplete tweet. So we do think it is important to do. तो पिछले हफ्ते ही ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क ने व्हाइट हाउस द्वारा ट्वीट डिलीट किए जाने का स्वागत भी किया। साथ ही ये भी पोस्ट किया कि ट्विटर का फीचर जिसके जरिए नोट यूजर्स की अलग अलग रायों पर जारी हुआ, वो ऑसम है। मस्क ने ट्वीट कर क्रेडिट लेने की कोशिश की और ये ट्वीट किया जो हम आपके सामने कुछ इस तरह से रखना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारा लक्ष्य राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना ट्विटर को पृथ्वी पर सूचना का सबसे सटीक स्रोत बनाना है। यानी क्रेडिट लेने में एलन मस्क फिर आगे आ गए। जबकि व्हाइट हाउस द्वारा ट्वीट डिलीट किए जाने पर लिबरल पार्टी के 2020 के अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंटशिप के नॉमिनी स्पाइक कोहेन ने भी कमेंट किया और लिखा कि वेलकम टू एलन मस्क ट्विटर। इस पर एलन मस्क ने जवाब में लिखा, द सिस्टम इज वर्किंग। ट्विटर पर हुए इस ताज़ा वाक़ये से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि सरकार भी श्रेय लेने की कोशिश में किए गए ट्वीट की आलोचना होने पर अपनी गलती मानती है
वहीं एलन मस्क, जिन्हें बेशक ट्विटर को पैसा कमाने का जरिया बनाने की कोशिश के लिए आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने ये साफ करना चाहा है कि वो ट्विटर को एक ऐसे मंच के रूप में देखना चाहते हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को मेंटेन करने के साथ साथ सरकार और दलों से हटकर स्वतंत्र मंच के रूप में काम करे। तो एलन मस्क का ट्विटर बदल रहा है और ये बात कही है लिबरल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने, जो कि 2020 में अपनी पार्टी के अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंटशिप के नॉमिनी थे और व्हाइट हाउस को इसीलिए डिलीट करना पड़ा क्योंकि सिस्टम जो ट्विटर का है वो मजबूत है। ये एलन मस्क ने श्रेय लेने की कोशिश की है।